एक एटोपिक डर्माटाइटिस की केस है क्या होता है? स्किन के ऊपर इरप्शंस आते हैं। हाँ, वो पस उसमें होता है, पानी होता है, उसका पूरा बॉडी बह रहा है। तो देखो ये केस में ये बच्चा है 10-11 महीने का। अच्छा 10-11 महीने का। हाँ, ये दवा है डीएनए। हमारा जो डीएनए है Okay. वो ह्यूमन डीएनए हमने ड्रग करके यूज किया है। तो उसको मैंने डीएनए का 200 पोटेंसी का सिंगल डोज दिया, पूरी उसकी बीमारी नष्ट हो गई। A good homeopath will not give a guarantee of cure. He will give a guarantee of efforts. देखो एक सिफिलिनम करके दवा है। ओके, ये दवा टेररिस्ट पीपल के लिए बहुत अच्छा है। ये स्ट्रक्चर होम्योपैथ देता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर एलोपैथी में नहीं मिलता। there is another thing that people would like to know about homeopathy is Yeah. that काफी बार हमको 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में ऐसे होम्योपैथ्स बोलते हैं कि यू कांट हैव एनीथिंग बिफोर एंड आफ्टर। तो उसका रीजन क्या है, रैशनल क्या है, क्यों ऐसा करना पड़ता है? देखो कैसा है, हम बहुत फूड आइटम्स खाते हैं। उसमें कुछ आइटम्स ऐसे रहते हैं जिसको स्ट्रांग ऑर्डर आता है। अच्छा, जैसे हमने ओनियन ले लिया है, कुछ मसाला है, तो वो स्ट्रांग ऑर्डर, इट इज सेड दैट स्ट्रांग ऑर्डर cause a retardation of the action of the homeopathic remedy. okay. Actually, in the research, it is said that this is not true. But still, there are two reasons behind it. We do not want to have any obstacle in the action of a remedy. Second one, you have to give importance to the remedy also. So patient must follow something. It's like you see, you have to give a feeling that you are taking a medicine. So give respect to this medicine. So for this respect, there must be some autonomy, no? So you get an autonomy of this. So this is also one of the ways to effectively communicate. And patient has a feeling that I'm taking a medicine. Oh, 15 minutes before and after I should मतलब वो not take any. साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ तो शिफ्ट होता है। Shift होता I है। know. My daughter, she has been coming to your clinic, and we have seen such a phenomenal change in her attitude, in her overall immune system level. So I want to understand that how does homeopathy kind of improve the overall immune system? You see, this is the very basis of homeopathy. Okay. With the law of similars, which is a natural principle of healing, you try to go for immunostimulation. What is exactly meaning of this? It means you have resources, no? आपके पास पैसा है, लेकिन आपके पास पैसा खर्च करने की बुद्धि नहीं है। तो क्या होगा? आप पैसा खर्च ही नहीं करेंगे। आपके घर में बीमारी है, लेकिन वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे आप, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो नहीं है। तो पैसा है, तो पैसा है मीन्स यू हैव द रिसोर्स, बट you do not know how to use the resource. Absolutely. So in many of our problems related to health, we have this big issue how we can use ourselves. How we can use ourselves about infections, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, मेंटल इश्यूज है, हमारा एंगर है। देखो अभी एंगर का देखो, ईच वन बॉइल्स एट डिफरेंट डिग्री इन द लाइफ। एब्सोल्युटली, हाँ। तो उसके एक मैनेजमेंट रहती है। होम्योपैथी क्या करती है, आपके सामने एक कन्फ्रंटेशन के लिए एक आपको प्लेटफॉर्म देती है जिसमें आप खुद को यूज कर सके। ये यूज करना, इसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो होम्योपैथ देता है, वो होम्योपैथी की रेमेडी देती है। तो मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे एक ले पर्सन के लिए कि ऑल ऑफ अस हैव सम काइंड ऑफ already blessed system, just because there is no trigger or there is no kind of a some kind of stimulant, our body forgets that kind of a system, and then homeopathy helps us to trigger that, and the immune system kind of starts self-healing. Very and nice, very nice. Improving. You are talking in a real homeopathic way. You see, each one has a doctor within. Absolutely. Our job is to arouse that doctor, that healing, which body knows how to do it.
हमने अभी क्या किया है, ये डॉक्टर विद इन वी आर नॉट ट्राइंग टू अराउज, ये अवेकनिंग है. हाँ. कोई भी अवेकनिंग बिना अच्छा नहीं होता. Healing is a not superficial separation of some symptoms. Healing is a very deep process. Healing में adaptation है. Healing में recurrences नहीं है. Healing में एक peace within and without है. ये सब हम individual and then social ऐसा जब consider करते हैं, तो मुझे तो लग रहा है homeopathy can be a very good solution for terrorism and violence which is occurring all over the world. So what is terrorism and you see fundamentalism, और ये हमारे लाइफ में जो radical thinking है, radical thinking, और you see the big problem is that the humanitarian attitudes are drying up. तो ये कल्चर से रिलेटेड है काफी सारा कुछ है, लेकिन इसके लिए होम्योपैथी में दवा भी अच्छे है. अच्छा. देखो एक सिफिलिनम करके दवा है. ओके. ये दवा टेररिस्ट पीपल के लिए बहुत अच्छा है. अच्छा. इसके लिए उनके मन में जो एक क्रूएल्टी है वो कम होती है. देखो हमारे पास एक बहुत अच्छी दवा है, आयुर्वेद में उसे बिब्बा बोलते हैं. एनाकार्डियम इज द नेम ऑफ दिस मेडिसिन. वी गिव दिस रेमेडी टू द पेशेंट हु इज एक्सेसिवली एंग्री, who is a destructive one. उसका डिस्ट्रक्टिव एंगर, वायलेंस कम होता है. अच्छा. एनाकार्डियम देने के बाद एंगर उसका कम होता है, हम देखते हैं. तो आपकी मतलब ऐसे कुछ सिग्निफिकेंट आपने इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं कि मतलब 50% इम्प्रूव होता है, 60% इम्प्रूव होता है? हमारे पास तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पीपल आते हैं, साइकियाट्रिक पेशेंट्स आते हैं, उसमें हम बहुत चेंजेस देखते हैं. देखो ये थीम कैसी है, अभी मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ. मेरे पास एक रशिया का एक आर्टिस्ट आया था. वो स्केचेस में बहुत होशियार था, और उसको थोड़ा डिप्रेशन आ गया. थोड़ा जेनेटिक भी था, थोड़ा फैमिलियल था, थोड़ा फाइनेंशियल था, और वो डिप्रेशन के बाद कुछ करने का नहीं, इंडिफरेंट हो गया, लोथिंग ऑफ लाइफ हो गया, और वो सोने का, कुछ काम नहीं करने का. तो ये मैं जब इस्राइल में गया तो मुझे ये केस दिखाई उन्होंने, और मैंने उसको सब सोच के कार्सिनोसिन करके दवा दिया. ये कैंसर टिश्यू के वास्ते तैयार किया है. ब्रेस्ट कैंसर ऑफ ए वुमन इज यूज फॉर द सेक ऑफ मेडिकल सब्सटेंस. ओके. तो हमारे इसमें उसको नोजोड्स बोलते हैं. तो हमारे पास मोर देन 20 नोजोड्स है. तो हमने उसको एक 1M पावर का 1000 पावर का एक डोज दिया, और 6 महीने के बाद मैं जब वापस गया इस्राइल में, तो वो फॉलोअप के लिए आया था. तो मेरे सामने मेरा ही स्केच उसने निकाला, जो कम से कम 3 बरस बिल्कुल स्केच नहीं निकाल रहा था. He had become a sloth, basically. अभी उसकी इनर की जो क्रिएटिविटी है, आर्टिस्ट होने की जो क्रिएटिविटी है, दैट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज true self and his healing and his wellness. Correct. So ऐसा यूनिक हर आदमी के पास रहता है, और वो रिस्टोर करना इज आल्सो पार्ट ऑफ द हेल्थ. इसलिए मेरे डेफिनेशन में हेल्थ का सिर्फ अब्सेंस ऑफ सिम्टम्स नहीं है, अब्सेंस ऑफ डिसीज नहीं है, सिर्फ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ नहीं है. मेरे डेफिनेशन में क्रिएटिविटी मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द हेल्थ. Absolutely. Very interesting point that you said. See, अगर हम human existence भी देखें और हमारी dimensions भी देखें, we have different, like we are left brain and right brain, right? And one part of the brain is logical, another part of the brain is absolutely creative. And we say when a person is in balance, both left brain and right brain is working phenomenally well. So this is something, does homeopathy achieve? Yeah, basically the whole concept is to restore. The whole concept is to rejuvenate by giving his own state of economy of the whole mind and body together, so that he enjoys the peace, he enjoys the happiness, he enjoys his well adaptation to the environment. देखो सब मामला आता है अडाप्टेशन का. आप कितना ज्यादा अच्छे तरह अडाप्टेशन कर सकते हो, that is counted. That is the only thing which a human being has as far as the healing is concerned. वो दिखाएगा
हीलिंग दिखाएगा अडाप्टेशन से, और कितना अडाप्टेशन होगा इसके ऊपर तुम्हारा रिजल्ट ऑफ थेरेपी भी डिपेंडेंट है। वैसे डिपेंड करेगा। या इसलिए मैंने जो 4 किताब लिखे हैं उसमें ये पहला वॉल्यूम है, इसका नाम भी मैंने यही रखा है, होम्योपैथी थ्रू हार्मनी एंड टोटलिटी। ये टोटलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो पूरा माइंड बॉडी लाइफ का टोटल पिक्चर है, इसमें हार्मनी होना चाहिए, दैट इज द होल इश्यू। इसलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। देखो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ये एलोपैथी ने पकड़ लिया है, वो भी बहुत जरूरी था, इसके वास्ते बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई, सोफिस्टिकेशन आ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, उसके वास्ते डिसीज का अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया, ये सब ठीक है। लेकिन द वेरी बेसिस ऑफ मेडिकल साइंस मस्ट बी फर्स्ट फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं है बेसिस, पिलर। दूसरा पिलर रहना चाहिए साइकोलॉजी। ये दोनों पिलर्स है वो अच्छे रहते हैं, उसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी आ जाएगा। आज क्या हो गया, बॉडी को बहुत महत्व आ गया, इतना महत्व आ गया, ये एक पिंपल यहाँ आ गया तो लेडी को लगता है वहां ये एक माउंटेन आ गया। Civilized human being today is more in the body, less in the mind, less in the spiritual healing. Yes, absolutely. होम्योपैथी क्या करती है, आपको ये तीनों लेवल के ऊपर जाने के लिए आपको एक थिंकिंग देती है। दिस इज बेसिक। Yes, absolutely. इसलिए मुझे लग रहा है फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंस, इफ यू लीव अपार्ट साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी। देखो, फिलोसॉफी क्यों पहले चाहिए, वो फ्लेक्सिबल रहती है, साइकोलॉजी में थोड़ी फ्लूइड है, वो आपका सिर्फ A+B=C नहीं होता है, then they say okay, A+B can be C, it can be D, it can be E also, because it is very fluid and very good. You have very aptly told me about fluid. तो साइकोलॉजी में थोड़ा ये रिजिडिटी आती है, इसलिए साइकोलॉजी मैंने 2 नंबर के ऊपर रखा है, 3 नंबर के ऊपर मैंने ऑल सब रखा है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये जो है ना, वो 3-4 नंबर के बाद जाएंगे। ये जब हो जाएगा तब लोगों को समझ जाएगा हम दवा ले रहे हैं क्या कर रहे। अभी ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे, ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल में है, इतना आसान काम नहीं होना चाहिए, इसके आगे बहुत है, इसके आगे इतना है, हेल्थ का, डिसीज का, फिर आपके स्किल्स का। ठीक है, आपने ब्लड प्रेशर कम कर दिया, एक तुम्हारा यंत्र बताता है ब्लड प्रेशर कम है, व्हाट अबाउट द क्रिएटिविटी, अबाउट हैप्पीनेस, व्हाट अबाउट अडैप्टेशन, ये क्वेश्चंस तो पूछना चाहिए ना। और अच्छे डॉक्टर को जिसकी विजन बड़ी है, ये तो आएगा फॉलोअप में। एब्सोल्युटली। अदरवाइज वो यू आर लिविंग अ वेरी शैलो लाइफ। आप जो बता रहे थे कि जो हमारा शिफ्ट हो रहा है, वो तो हम भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि मतलब वी आर गेटिंग सो एडिक्टेड टू फोन, and there is so much what do you say, importance that is given to the external appearance, or the kind of materialism that is catching up, and then what is eventually happening, and somewhere we are losing track of who we are. right. और ये मेडिकल साइंस का क्यों नहीं ये सब थिंकिंग बन सकता? ये मेडिकल साइंस इज not only the body, no, it is not even in the mind also, it is of life. इसलिए मेडिकल साइंस ने लाइफ का पूरा सोच के एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ये स्ट्रक्चर होम्योपैथ देता है, ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह आयुर्वेद भी देता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर एलोपैथी में नहीं मिलता। उनमें बायोलॉजिकल ज़्यादा कंसिडरेशंस आते हैं, फिजिकल कंसिडरेशंस आते हैं। इसलिए आपने जो क्वेश्चन पुटअप किया था, वेदर इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, यस, रादर इट मस्ट बी डन ना। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक रिसर्च किया है, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक, जिसको अपन हार्ट अटैक बोलते हैं, या ब्रेन स्ट्रोक। इसमें पहले दिन से होम्योपैथी एलोपैथी के साथ दे दी, पेशेंट रिकवरी इज वेरी क्विक। That's quite phenomenal. Yes, तो आपके पास कोई ऐसे सिनेरियोज हैं, या आपके कुछ टोटल नंबर्स आप शेयर करना चाहोगे जहां पे आपने कोई ऐसा इंटीग्रेशन किया है एलोपैथ्स के साथ, जहां पे आपको रिजल्ट्स आए? यस, करते हैं। कुछ सीवियर इन्फेक्शंस में जहां एंटीबायोटिक से बहुत जरूरत है,
वहाँ एंटीबायोटिक्स के साथ होम्योपैथी दिया तो बहुत फायदा होता है ओके इन चिल्ड्रन डिसीजेस, इन ऑल अदर केसेस। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में बहुत सीवियर एक्यूट इमरजेंसी स्टेट है तो एलोपैथी के साथ होम्योपैथी दिया तो पेशेंट जल्दी बाहर आता है। तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बहुत एग्जांपल्स। मेरे कुछ कलीग्स हैं यूरोप में, उन्होंने इमरजेंसीज इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस करके संशोधन किया 20 बरस। अच्छा, उनका एक बहुत बड़ा 700 पेजेस का किताब है उसके। तो दैट मीन्स कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि होम्योपैथी कैन बी टेकन इन मेडिकल इमरजेंसीज। रादर इट मस्ट बी टेकन, ओके, यू आर सेइंग इट मस्ट बी टेकन। मस्ट बी टेकन। लेकिन इमरजेंसी आपको डिफाइन करना पड़ता है। व्हाट काइंड ऑफ इमरजेंसी, वेयर इज इमरजेंसी, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, उसकी हिमोडायनामिक कंडीशन क्या है, कौन से ऑर्गन में क्या इमरजेंसी की पैथोलॉजी डेवलप होगी, ये सब टोटल अंडरस्टैंडिंग करने के बाद रोल हमारा डिफाइन होता है। इमरजेंसी जस्ट ए ग्रॉस वर्ड, समझो ऑक्सीजन देना है तो देना है, हाँ, वो देना है, क्योंकि उसका तो जरूरत है। हाँ, और बिल्कुल। ऑक्सीजन देना ये कोई एलोपैथिक नहीं, होम्योपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक नहीं है, ये बॉडी की नीड है उस बॉडी टाइम की पे। नीड है। सिर्फ आप कुछ सिलेंडर से दे रहे, पाइप से दे रहे, पाइप तो एलोपैथिक नहीं है, सिलेंडर भी एलोपैथिक नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन हो सकता है और होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं ए गुड इमरजेंसी फिजिशियन मस्ट नो होम्योपैथी एंड होम्योपैथ आल्सो मस्ट नो एन एक्सपर्ट इन इमरजेंसी, पेशेंट के लिए। और हम सब किसके लिए है? पेशेंट को, राइट। सो द अल्टीमेट एम इज टू सेव लाइव्स, राइट? सेव लाइफ, reduce the suffering, and moreover than this is basically to define our role as a human being as far as health, disease and cure are concerned. You cannot separate this. Whatever thinking you have, you must come up to this level. What exactly is health, what is disease and what is cure? So brilliantly put. मतलब एक होम्योपैथ के लिए इससे ज्यादा ग्रेटिफाइंग मोमेंट क्या होगा कि इतने सारे इंटरेस्टिंग आपने केस स्टडीज शेयर किए और इतना सारा आपने यू हैव शेयर्ड सो मच दैट इज लाइक क्वाइट फिनोमिनल। मतलब इसके बारे में बात नहीं होती है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। ये केस ने तो मुझे इतना सिखाया और मैं बहुत वर्ल्ड में फेमस हो गया। अच्छा, केस ऐसी है, एक एटोपिक डर्माटाइटिस की केस है। वो क्या होता है? स्किन के ऊपर इरप्शंस आते हैं। हाँ। वो पस उसमें होता है, पानी होता है, उसका पूरा बॉडी बह रहा है। ओके। चाइल्ड इज क्रैंकी, इरिटेबल, क्राइंग, ईचिंग। उसके लिए स्टेरॉइड दिया, स्टेरॉइड की क्रीम लेकर एंटीबायोटिक से बहुत हो गए, वो अच्छा नहीं हो रहा। तो एक होम्योपैथ ने मुझे रिफर किया रशिया में। तो मैंने देखा जो हमारे दवा है जो हम यूजुअली देते वो सब देके हो गया था। तब मुझे अभी प्रॉब्लम आ गया, मैं क्या करूँ? तो मैं बोला कुछ तो है ये केस में, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ओके, देखो ढूंढना तो साइंटिफिक बात है। हाँ, बिल्कुल। मतलब यू हैव टू गो थ्रू सो मेनी बुक्स एंड यू हैव टू रिसर्च एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉजिंग इट एंड व्हाट कुड बी द रेमेडी, राइट? तो देखो ये केस में ये बच्चा है 10-11 महीने का। अच्छा, 10-11 महीने का? अच्छा, आई थॉट थोड़ा बड़ा, 10-11 साल का। उसके माँ जब प्रेग्नेंट थी। और ये कहाँ पे था, किस कंट्री में? रशिया में। रशिया में ही था। तो ये मदर को 3 महीने के जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसका और उसका हस्बैंड का क्वारल हो गया। अच्छा। और हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया। अच्छा। दिस वाज अ बिग शॉक फॉर हर। और वो उसमें उसको आत्महत्या करनी थी। अच्छा, she developed suicidal tendencies. Okay. But only at looking at the pregnancy, she refrained. उसको एक फीलिंग ऐसा आ गया, मेरा सोल गया, मेरा लाइफ का सोल गया, ऐसा उसको फीलिंग आ गया। मैंने सब रिकॉर्ड किया, वो पूरा इसमें रो रही थी। और वो बोलती है मुझे, ये मेरा जो टेंशन इतना था ये सब स्किन के ऊपर ये रिफ्लेक्ट हो रहा बच्चों में। क्या बोलती वो? उसको समझता है। मतलब she could understand कि मतलब it is all the reflection of the emotions that she was going through. Oh, okay.
अभी नए जो कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन डिसीजेस में आए हैं उसमें मदर्स रोल ऑफ मेंटल स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ए वेरी बिग वन. तो इसकी वजह से ऑटिज्म भी बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यही रीजन है क्या? ऑटिज्म बढ़ रहे हैं, ADHD बढ़ रहे हैं. हम्म, उसके पीछे भी बहुत और कुछ कॉजेज भी है. हम्म, तो ये सब केस में सब सोच के मैंने उसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया है, ये दवा के ऊपर. ये दवा है DNA. हमारा जो DNA है ओके वो ह्यूमन DNA हमने ड्रग करके यूज किया है होम्योपैथी में. ओके, ह्यूमन डीएनए, DNA. मेडिकल. मेरे ये किताब में मैंने उसके ऊपर लिखा है ओके, DNA का. तो उसको मैंने DNA का 200 पोटेंसी का सिंगल डोज दिया, ओके, पूरी उसकी बीमारी नष्ट हो गई. वाओ. 1 डोज, नो रिपीटिशन. हम्म, 1-1.5 साल के बाद और एक डोज दिया, थोड़ा रिकरेंस आ गया, हम्म, फिर बिल्कुल नहीं. हम्म, फिर वो मॉस्को छोड़ के बहुत दूर गई वहाँ. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ DNA. यू नो DNA इज ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. यस, बिल्कुल. वो पैर में काम करता है. हाँ 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 हाँ. यही तो पैर है ना चाइल्ड और मदर का. वाओ, ओके. थिंकिंग देखो क्या है, ये हम्म. होम्योपैथी का थिंकिंग है. आप एलोपैथी के पास जाएंगे वो बोला क्या बोल रहा है ये. यस, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. अभी ये पैर में देखो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में कोई भी इंजुरी हो गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत रहते हैं. एक यूनिटी है, ये यूनिटी के ऊपर का हमारा लाइफ है. देखो DNA इज जस्ट लाइक मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन स्पीसीज. Absolutely. Yeah, it's carrying generation after generation. Correct. There are impressions, there are memories, Correct. there is composition, body composition. Everything is बिल्कुल. getting carried through DNA, बिल्कुल right? बिल्कुल. Hmm. तो ये सब ट्रांसमिट करने वाला जो है, और शिव का हमारा जो काम जो बताया है तो यही है, Hmm. निर्माण करने वाला, फिर मेंटेन करने वाला, फिर डिस्ट्रॉय करने वाला. Hmm. तो DNA इज लाइक शिवा. Wow. और ये DNA का पैर में काम करना और पैर बिगड़ गया था, नुकसान होना, Hmm. ये नुकसान चाइल्ड के ऊपर आया. उसका फीलिंग क्या था, एज इफ माय सोल इज सेपरेटेड. Separating. Hmm. दैट डीप फीलिंग shows to you the depth of psychopathology. Hmm. वो मन में जो डेवलप हो गई वो impression अटक गया ना, अटक गया. consciousness और में. DNA क्या किया, ये चाइल्ड में जो आया था वो रिमूव किया. Hmm. अब ये थिंकिंग कैसे आप बोलेंगे, उसको साइंस में कैसे कैसे डालेंगे, देंगे? क्योंकि वो रिजल्ट तो A plus स्पीकिंग B is equal to C. नहीं होता ये. Hmm. यानी मुझे क्या बोलना है, ये एनर्जी के ऊपर ही रहता है. और इसका जो लॉजिक है, दिस इज होम्योपैथी. Wow, it's incredible. I'm actually, kind of so much is shifting in me as I'm speaking to you. Yeah. And I would, like to have all of us who are looking at this story, who are going through this story, that it's so important to be open in your mind. It's so important to accept everything from an open mind, because it kind of gives you an open space to kind of understand any therapy, any knowledge. Therapy. You see now, Garbha Samskar is a very typical of Hindu philosophy. Absolutely. प्रेग्नेंट वुमन ने अच्छा खाना चाहिए, अच्छा विचार करना चाहिए. विंडिक्टिव और जो गलत है वो देखना भी नहीं चाहिए. जो क्यों आया, because impressions carry हो जाते हैं. Yes. और अभी नया जो रिसर्च है वो यही बताता. I agree. तो वहां से आ गए ना वो फॉरेन से, तो अच्छा है. हाँ, मतलब वो हम एक्सेप्ट करते हैं इंडियंस का. That's the tendency that Indians have. So do you think that this is your biggest gratifying moment? Yeah, more also. You see, I have been working and I found homeopathy is a very useful therapy in many of these problems. Many of these problems. तो अगर आपको कुछ ऐसे इनको रैंक करना होगा, तो which could be those 10 diseases that you think homeopathy can short give solutions, if you could name them? देखो, ये आपका क्वेश्चन कैसा, मैं आपको बताता हूँ. श्योर शॉट यानी गारंटी. होम्योपैथी इज अ वेरी यूजफुल थेरेपी फॉर ऑल पेशेंट्स. ओके. लेकिन पेशेंट के पास उसका एक वाइटल फोर्स है, उसकी एक वाइटलिटी है खुद का, उसका एज है, उसका ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी है. ऑल दीज आर काउंटेड.
Hmm. यू सी टेक फॉर एग्जांपल 8 ईयर बच्चे का खांसी Hmm. और 80 ईयर ये ओल्ड मैन की खांसी एक नहीं रहती, हाँ. Both are different, right? बहुत डिफरेंट। Hmm. ये वैद्य के शाखे में ऐसा सोचना पड़ता है। Hmm. लेकिन you can ask me whether homeopathy is useful out of these 10, which one more? Hmm. I will tell you homeopathy can be useful in all diseases. Hmm. सर्जिकल ट्रू डिसीजेस में जहाँ सर्जरी लगती है Hmm. वहाँ अंदर से मेडिसिन लेके अच्छा करना पॉसिबल नहीं है, Hmm. ये लिमिटेशन तो रहेगा। हाँ. ये एलोपैथी की भी लिमिटेशन है, हाँ, आयुर्वेद की भी है, वैसा हाँ. होम्योपैथी को है। हाँ. फिर कुछ ट्रॉमा केसेस रहते हैं जहाँ फ्रैक्चर हो गया Hmm. और आपको सर्जरी करना पड़ेगा, वहाँ होम्योपैथी का रोल कम होगा। Hmm. कुछ इनक्योरेबल केसेस है, अभी पेशेंट को वेंटिलेटर लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो लगाना पड़ता ही है। Hmm. ये एलोपैथिक नहीं है, Hmm. लेकिन ये दवा देके अच्छा होगा ऐसा होम्योपैथ ने गारंटी से बोलना अच्छा नहीं है। नहीं. और मैं एक बात बताता हूँ, a good homeopath will not give a guarantee of cure, he will give a guarantee of efforts. Okay. जिसको पैसा कमाना है, जिसको इन्फ्लुएंस डालना है, मैं अच्छा करूंगा, 1-2 महीने में आप अच्छा हो जाएंगे। एक क्रॉनिक डिसीज है, 30 ईयर स्टैंडिंग और होम्योपैथ बता रहा 2 महीने में अच्छा हो जाएंगे, दिस इज गलत यूज, दिस इज रॉन्ग। Hmm. सो क्योर इज बेसिकली वेरी डीप प्रोसेस एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन सेवरल फैक्टर्स। मैं आपको बताता हूँ, देखो एक हस्बैंड है, वो वाइफ को तकलीफ देता है, Hmm. मारता है, ह्यूमिलेशन करता है, इसके वास्ते वाइफ को हाइपरटेंशन हो गया। Hmm. अभी हमारे पास केस आ गई, Hmm. तो हाइपरटेंशन की दवा हमने उसको दे दी, ये स्टैमलो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, उससे क्या प्रॉब्लम पेशेंट का खत्म हो गया, मुझे बताओ, क्या खत्म I क्या हो think गया? core problem तो वही है कि उसको वही- मारते पीटते वही है है। husband, right? तो प्रॉब्लम इज दैट आइदर हस्बैंड मस्ट इम्प्रूव Hmm. और पेशेंट मस्ट इम्प्रूव। Hmm. यानी क्या उसने डाइवोर्स लेना चाहिए। Hmm. Their relationship Yes, has to yes. improve basically. Hmm. ये नहीं होता तो इनक्योरेबिलिटी तो आपके सामने है, Hmm. जब तक वो मारेगा तब तक ब्लड प्रेशर रहेगा, तकलीफ रहेगी, और वो मर भी गया तब भी मन में उसके प्रति impression बहुत रहेगा। हेटरेडनेस है, एंगर है, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देगा। Hmm. ये ट्रीट जब तक नहीं होता तब ब्लड प्रेशर अच्छी तरह कम नहीं होता। Hmm. देखो, हेट फीलिंग बहुत ही स्ट्रांग नेगेटिव फीलिंग है, और आदमी के साथ वो है तो वो रिबाउंड तुम्हारे ऊपर आती है, Hmm. तो वो ट्रीट करना तुम्हारा काम ही है। तो मेरे पास एक केस आई है, ब्लड प्रेशर विथ हेटरेड फीलिंग, तो मैं दवा सिलेक्शन करता ना, मुझे ये सोचना पड़ेगा, आई विल टेक इनटू अकाउंट हेटरेडनेस ऑफ ए पर्सन इन द सिलेक्शन ऑफ ए रेमेडी फॉर हाइपरटेंशन। Hmm. होम्योपैथी में कम से कम 900 मेडिसिन है ब्लड प्रेशर के लिए। 900. 900 Okay. हमारा बहुत बड़ा रूब्रिक है उसके ऊपर। Okay. तो उसका सिलेक्शन इज अ वेरी रिफाइंड प्रोसेस थ्रू साइंस एंड थ्रू आर्ट। Hmm. तो होम्योपैथी ऐसे काम करती है, आपका कैरेक्टर लेती है, आपके पास यूनिक क्या है देखती है, फिर उसका परिणाम देखती है, और फिर दवा मिलती है, क्योंकि टोटलिटी मीन्स कॉज एंड इफेक्ट मर्ज टुगेदर। Hmm. और कॉज एंड इफेक्ट के बाद एक फेनोमेनन तैयार होती है, ये फेनोमेनन इज ए डिसीज। Is the disease. When- उसको लेबल तुम कुछ भी दो, नमोजी को गमोजी बोले आप, तब भी वो नमोजी रहता है। बिग इशू इज व्हाट इज टू बी ट्रीटेड इन ए केस, Right. व्हाट एग्जैक्टली इज द सिकनेस। Hmm. ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ पर्टिनेंट क्वेश्चन, Hmm. and homeopathy has to work at this level. A physician must see why this patient is suffering and what I have to treat in this case. It's quite interesting the Yeah, way yeah. you are opening the layers of existence, talking about how life has to be seen from a holistic angle, both for the homeopath Yeah. as well as the patient, because there needs to be a mutual acceptance when we are taking any kind of Yeah. solutions Yeah. from a homeopath. तो इससे if we kind of try to conclude what all we discuss, तो ऐसी क्या चीजें हैं
जो हमें करना चाहिए along with homeopathy, जो हम मतलब we should shift in us if those 5 things are there, that will give us better Oh, result of oh. homeopathy. I think out of all our discussions, this is the question which is a very important question you have asked. I think we are not only animals. Hmm. I think everyone has 3 levels. Hmm. First, he is an animal. Hmm. Human is an animal. Then he is a human being. The third one is a human divine. Hmm. इसलिए तो स्पिरिचुअलिज्म बोलता है आप गॉड है. Hmm. आपके दिल में, मन में, सिस्टम में क्या है? God. अहम ब्रह्मास्मि. Yes. देखो ये सिर्फ थॉट प्रोसेस नहीं है. दिस इज रियली प्रेजेंट. इसलिए बोलते हैं ह्यूमन लाइफ इज ए वेरी प्रेशियस लाइफ इन कंपैरिजन टू लोअर एनिमल्स. ये तो सत्य है. Hmm. तो पहले हमें समझना चाहिए, आर वी एनिमल्स टुडे? Hmm. सेकंड क्वेश्चन है, आर वी ह्यूमंस टुडे? एंड थर्ड क्वेश्चन है, हैव वी Evolved. evolve as a Human human divine? Wow. Interesting. But I follow spiritualism, but the way you have put it, it's kind of actually shifting so much in me, and I'm trying to correlate with it. अभी देखो वायलेंस देखो, टेररिज्म देखो, ये एनिमल इंस्टिंक्ट बताते हैं. Absolutely, you're right. ह्यूमन में सिंपैथी है, एम्पैथी है, हेल्प है, लव है, करुणा है, अनुकंपा है, ये रिस्पेक्ट है, ऑनर है ह्यूमन का. ये ह्यूमन बीइंग में आ जाएगा. इससे आपका और ज़्यादा इवॉल्व होना है तो आपको वो कॉन्शियसनेस मालूम होना चाहिए, और वो कॉन्शियसनेस भी साइंटिफिक है. मैं ये विश्व में क्यों पैदा हो गया, ये विश्व का मेरा रिलेशन क्या है, मेरा बर्थ यानी क्या है, मेरा डेथ यानी क्या है, इसका समझना, ये आत्मज्ञान भी साइंटिफिक है. एंड एवरीवन हैज अ राइट ओवर इट. जैसा हम ये स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो ये भी हमारा स्कूल ही है ना लाइफ का. सो आई मस्ट नो व्हाट इज बर्थ फॉर मी, व्हाट इज डेथ फॉर मी, एंड व्हाई इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस. इट मस्ट बी पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस. नो, देखो आज मटेरियलिज्म की वजह से इतना चेंजेस आ गए. गलत है या राइट है, इज ए डिफरेंट इशू. इट्स अ डिफरेंट थिंग. मैं बताता हूँ, अभी आईसीयू में पेशेंट है, अभी 10-12 दिन है, वेंटिलेटर के ऊपर है. उसको मन में वो कोमा में नहीं है, लेकिन उसको उसके पत्नी को मिलना है. कितना डिफिकल्ट है मिलना वहाँ. उसकी एक इच्छा है, मुझे मिलना है. देखो एक 20 बरस पहले उसका डाइवोर्स हो गया और उसको कुछ बताना है और इसको उसने मैसेज दिया है. लेकिन देयर आर सम ऑब्स्टेकल्स वेयर द वाइफ 20 years ago ex-wife is not able to meet. And he doesn't meet his ex-wife and he dies. इसकी जिम्मेदारी कौन जिम्मेदारी लेगा? और जिम्मेदारी मेडिकल साइंस के ऊपर है या नहीं है, आपको क्या बोलना है? ये इश्यूज आते हैं ना, और इसका कंसिडर करना नहीं, क्या बोलो, कब करेंगे आप, कब करेंगे बोलो आप. दिस इज डिफिकल्ट. नो, तो ये बहुत ही डीप इश्यूज अबाउट लाइफ है. और मेडिकल साइंस में सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस और ये लेबलिंग ऑफ द डिसीज में ये बैठ के ऐसा नहीं होता. I think it is all happening at a very transactional level. So moving from the space of transaction to the space of deeper understanding of life. Correct. And purpose of life will give you a very holistic view. Very good. You have summarized the whole issue very well. Yeah. And I think if we are changing at every level, no, we are going on the moon and you see all other spaces and everything. So why not in medical science we go from fundamental aspects? Why not we reform in a way everyone will be happy? And when this time will come, when there will be integration in medical science. Yeah. This time has come, I think. I think you rightly said. Because you see, you cannot brush aside the second most largest therapy in the world of homeopathy. Because you see, in Europe, the recent research has shown that it has crossed 76% people who consume homeopathy in Europe. That's the evidence. Yes. That's evidence. Wow. Yeah. I think we had such a
exciting conversation, and it was so insightful, and we kind of had such a big shift here. I'm sure our viewers also had such a big shift in Yeah. how this entire conversation has shaped up their thinking process. So after having such an incredible conversation, we come to the final and the penultimate Yeah. session of our entire conversation. We call it true and false. Okay. Rapid fire. Homeopathy is a placebo. True, False. false. You see, homeopathy is used in animals. Hmm. बर्ड्स है, माइस है, मंकीज है, डॉग्स है, हॉर्सेस है, उसको भी आप बोलेंगे प्लेसिबो करके, वहाँ काम कर रही है. So homeopathy medicines have steroid. True, false. False. Can you imagine what will happen if we start giving steroid? Who uses more steroids? Allopathics. So this question must be addressed to them, not to homeopath or to Ayurveda. If you are addressing to a homeopath, why he should use steroid when he has 6,000 homeopathic remedies to give to the patients? So we will add in all these 6,000 remedies steroid, you see. And if we are starting using steroid, do you know, within 8 to 10 days, patient becomes edematous. Patient's weight is increased. Patient develops moon phase. Patient develops hypertension. Patient has increased appetite. So हमारे इतने millions of patients all over the world है, वो सब के सब ओबेज बन गए क्या? ऐसा कभी देखा है? So this is just a false propaganda against homeopathy. Yeah. So homeopathy has side effects. Homeopathy has no side effects because I already told you we have filtered the material, crude, chemical, and toxicological effects. Homeopathy uses the micro doses, so it doesn't cause side effects. Side is a word which is used in connection with medicinal effects, which are not being available with the patient earlier. This concept is not prevalent in homeopathy because the pathogenetic action of a homeopathic remedy is totally dependent upon the similarity. So whenever there is a similarity, at that only level, homeopathy only acts. So there is a selectivity with collective approach. Therefore, there are no side effects. However, there are some over effects, what we call as the elimination process. For example, fever could be worse with homeopathy by 1 or 2 degree, which is very useful for healing. For example, you will find that there is an abscess which is on the verge of burst, and with our remedy, it is burst and patients all pus which is accumulated is being eliminated. So this is a curative process. So you could call them as an intensification of a curative process. Curative process. Yeah. Homeopathy can be used in medical emergencies. True, false. It is true. It can be used in emergencies, and it is a very, you see, useful in acute emergencies also. We also treat many acute emergencies, but we have to define very clearly what kind of emergency it is present. So to call that homeopathy is not useful in acute is wrong. Yeah. Homeopathy takes long time to heal. True, false. It is totally false because the action of a homeopathic remedy is dependent upon a person, his constitution, his diet, his mind, his mental makeup, physical makeup, obstacles which are present, his lifestyle, addictions, all these matter in the action of a homeopathic remedy. So this is not a one-sided process to understand whether homeopathy is useful or not. And it is a very personal issue. So it is wrong to say that homeopathy acts slowly. It is wrong. Yeah. Thank you so much, Dr. Yes, Kulkarni. It was such an insightful conversation. Thank you so much for empowering us with such incredible knowledge. I would recommend everyone on this channel to see this entire podcast, full podcast, to get
to know homeopathy from a very deeper and Yeah. wider lens. You see, to corroborate what you are saying, our Hanuman, the originator of homeopathy, wrote, "Prove homeopathy. Do not apply speculations and imaginations." And you see, experience is the only teacher for understanding knowledge. Knowledge is not information. Knowledge is experiential. That knowledge which is not experiential is always inadequate. Absolutely. So to call homeopathy as something placebo and this and that is only because of ignorance and haughtiness. When these two are combined, there are a lot of negativities. Negative. If you remove these two and look at homeopathy through a very wide, deep vision of understanding the faculty of medicine, you will find that homeopathy is a very intelligent, rational therapeutics, and which has a great potential to help the ailing humanity. Yeah. Thank you so much. Yes. Yes. Okay. Very glad to be associated with you, and all best wishes for all of your interviews in this way. And I'm very certain your platform will enlighten everyone. Thank you so much Yes. for your kind words and blessings, Dr. Kulkarni. I think it was a big shift, mind shift, Yeah. and I'm sure everyone will have Right. this mind shift. Right. Thank you This is the requirement. Thank you so much.